Hi. Yeah, please have your seat. Thank you, sir. Dr. Neelam, Yes, sir. briefly introduce yourself. Yes, sir. Good afternoon to all of the board members. My name is Dr. Neelam Mehra. I was born and bred in सोनीपत और मैंने वहाँ से ही अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन एज ए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी हुई पंचकुला BRS डेंटल कॉलेज से। आफ्टर दैट उसके बाद मेरा सिलेक्शन हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में हुआ। वहाँ मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में 13.5 years सर्व किया। Along with job, I started preparation for civil services and I got selected as Excise and Taxation Officer through Haryana Civil Services Examination 2017. So, sir, currently I am working as an ETO in Ambala City and preparing further. So, I have a vast experience of 16 years of working under government setup in two very different and dynamic departments. Thanking you for giving me an opportunity to introduce myself. Okay, Dr. Neelam, you come from Sonipat. जी सर। Achha. Now, what is Sonipat famous for? Anything which you would like to share with us? Yes, sir. So Sonipat is famous for. It is also called Swan Trust in Ashtalien, and it is famous for education. Many education colleges, institutes are there. Chotu Ram College, Food Processing Institute है, National Institutes है, OP Jindal University है, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज है। सेकेंड सर इंडस्ट्रियल एरिया है, NCR में है, तो डेवलपमेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा कुंडली में है बड़ी, एंड उस साथ के साथ आसपास के एरिया में इसकी डेवलपमेंट हो रही है। हॉर्टिकल्चर मार्केट है गन्नौर में। थर्ड है सर मशरूम प्रोडक्शन में ये फर्स्ट है हरियाणा में। एंड देन मोर ओवर रिसेंटली अब सर न्यूज़ में भी रहा कि यहाँ परमवीर चक्र मिला था होशियार सिंह दहिया को, तो उनके नाम पे अंडमान निकोबार में आइलैंड जो 21 आइलैंड अनाउंस किए गए उनमें से एक सोनीपत। सर स्पोर्ट्स के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में राई स्कूल है। गुड। आप कह रहे हैं ना कि अंडमान निकोबार में एक होशियार सिंह जी को परमवीर चक्र मिला था, तो उनके नाम पे अभी अंडमान निकोबार आइलैंड में एक आइलैंड को नाम दिया गया है। अभी जो लेटेस्ट अवार्डी हैं परमवीर चक्र, वो भी हरियाणा से हैं, और ही इज द यंगेस्ट परमवीर अवार्डी इन इंडिया, जस्ट 19 years old। वो कौन है? रिसेंटली सोनीपत के पास ही वेरी important industrial plant has been set up which was inaugurated by Prime Minister। क्या प्लांट किसके बारे में था वो? Yes, बहुत पास I है। read it. Just give me just 30 seconds. I just recall this. So no, sorry. Okay. I have read it. नो प्रॉब्लम। आपने कहा कि सोनीपत में इट इज एन एजुकेशनल हब, Yes, sir. पर अपनी एजुकेशन के लिए आप ऑल द वे यहाँ BRS में क्यों आए फिर? सर उस टाइम 3 ही कॉलेज होते थे, डेंटल कॉलेज रोहतक, यमुनानगर। जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ 1999 बैच था सर मेरा, तो हरियाणा में रोहतक, यमुनानगर एंड BRS डेंटल कॉलेज पंचकुला। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सर BDSC मिल रहा था, फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट ट्राई किया तो भी मुझे BDSC मिला। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि आफ्टर डूइंग योर BDS you have been working in various capacities in the government of Haryana and vast experience of 16 odd years. So still you feel that you want to grow further professionally. Yes, sir. Are you not satisfied with what you have done or achieved so far, or what's the reason? Yes, sir, sure, sir. It's a very interesting question because, sir, after serving for 13.5 years in health department,
तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं एज ए डेंटल सर्जन वो चीज़ें नहीं कर पा रही जो मैं एडमिनिस्ट्रेटर होकर कर सकती हूँ, बजाय कि बाहर बैठ के मैं गलतियाँ निकालूँ या फिर शॉर्टकमिंग्स गिरूँ. तो आई डिसाइडेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड contribute my 100% in whatever capacity I got. Moreover, civil services, these are providing me a broad platform to serve a larger whole. And third, सर कि मैं बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की जिनकी वजह से वो डेंटल पेन होते हुए भी नहीं आ पाते हॉस्पिटल में, तो वो उनको एड्रेस करूँ. 3 important news of today at the national level, which are today's headlines. Can you share with us? Yes, sir. Sure. Sir, I just read, but No problem. मैं अभी पढ़ के आई थी. Okay. Since you are in government service, as far as pension to the government servants is concerned, earlier we used to follow OPS. Yes. Now it is named as OPS, Old Pension System. Abhi another scheme has been opened 2015 onwards, which is called NPS, New Pension System. What's the difference between the two, and what was the need to shift from OPS to NPS, and for whom the NPS is applicable? Which all categories of citizens this NPS is applicable? Yes, sir. Sir, old pension scheme, it was basically it was up to 2004, and after 2004 new pension scheme was introduced. In the old pension scheme, the last salary से जितनी उनकी last salary होती थी उससे half as a pension count की जाती थी. न्यू पेंशन स्कीम में सर इसमें कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है जो 12% कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉय की सैलरी से, उसको इन्वेस्ट किया जाता है और म्यूचुअल फंड्स में या फिर डिबेंचर्स में. उसके बाद उनको एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम सर वो 60% अलाउेबल होता है, उसमें से भी वो 30% ले सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी ग्रोथ होती है. सर न्यू पेंशन स्कीम एंड अभी न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि कई सारी गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है कि वो पेंशन स्कीम हम दोबारा से लेके आएंगे. एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उसमें हमारा मनी जो है वो ज़्यादा हमें मिलता था, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, यहाँ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कम है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है. एंड उसके साथ सर न्यू पेंशन स्कीम में जैसे कि आपने पूछा कि कौन कौन एलिजिबल हैं इसके लिए, तो सर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आफ्टर No problem. Take your time. Be comfortable. Yes, sir. Thank you, sir. It is for all the employees. It is for all the government employees, or in addition to that, for somebody else also? Sir, all the government employees. New pension scheme. Yes, sir. Okay, no problem. Since you are presently working in excise and taxation department, recently a system has been launched, and recently a seminar was also held on this, which has been named as CCTNS, Crime and Criminal Tracking Network System. Are you aware of that? What is this, and what kind of event was held on this, and what has been Haryana's contribution towards this system? Sir, I'm aware of CCTNS, crime and नेटवर्किंग सिस्टम है, साइबर क्राइम्स के लिए है. सर लेटेस्ट इसमें एडवांसमेंट हरियाणा का क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी. Okay. India is presently the president of G20 forum. Yes, sir. Okay. Parallelly, recently an event was held online
where more than 85 countries participated, countries pertaining, belonging to Global South. Yes, sir. Can you tell us some highlights of this event which took place just few days back? Yes, sir. Sir, India represented the voice of Global South, and it has decided to represent countries which are either left over or which are less represented. जो हम ग्लोबल साउथ काउंट करते हैं वो कंट्रीज वो हैं जो लीस्ट डेवलप्ड हैं या फिर कम डेवलप्ड हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये हुआ था, और इट इज अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर इट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी. Is it an alternative to NAM? You know, there is already a forum which is called NAM, Yes, sir. Non-Aligned Movement. उसमें भी ग्लोबल साउथ की ही सारी कंट्रीज हैं प्राइमरली. Yes. तो अभी ये ग्लोबल साउथ का एक और फोरम इंडिया ने क्रिएट किया है, तो विद व्हाट ऑब्जेक्टिव इन माइंड? यस सर. सर, नैम का जो ऑर्डर हम मानते थे कि नैम का क्या ऑब्जेक्टिव है वो नॉन अलाइनमेंट पे बेस्ड था. उस टाइम की जो कंडीशन रिपोर्ट पे ड्यूरिंग, तो उस टाइम में नैम क्रिएट हुआ था. बट आजकल के ग्लोबल सिनेरियो में नॉन अलाइनमेंट नहीं हो सकती, मल्टीलेटरल. मैं वो नहीं कह रहा नीलम, मैं कह रहा हूँ कि कंट्रीज तो वही हैं, नाम दे दो उसको, चाहे आप ग्लोबल साउथ के नाम से बोलो या नैम के नाम से बोलो, कंट्रीज प्राइमरीली मोस्टली वही हैं, फ्यू कंट्रीज हियर एंड देयर. तो फिर नैम को ही आगे प्रमोट करते, why this new forum, though informally as of now, has been created? What was the objective behind government's thinking of creating another forum and having this kind of a summit? Sir, if I'm not wrong, it is related to because it provides in India a greater say in the world matters. And So you mean to say in erstwhile NAM, India was not having reasonable amount of say. no. That's why they wanted to have better say, and they went in for this Global South Forum. Is that correct? No, sir. Because today's scenario, multilateral alliances are need of the hour. Okay. Thank you. No problem. Okay. Neelam, you come from Sonipat. Yes, sir. So we would like to know about the people residing in Sonipat, because we heard so much about them, their IQ level, their emotional stability. Few specific things we always heard about the people residing in Sonipat. So we would like to know about that. Yes, ma'am. इसमें मैं एग्जांपल अपनी फैमिली से अगर स्टार्ट करूं तो मैंने देखा है कि जो मेरी मदर है वो इतनी बड़ी लिखी नहीं थी, बट वो फिर भी पापा की जॉब बाहर रहते थे, तो वो सारी फैमिलीज को, और हम 6 ब्रदर सिस्टर्स थे, तो वो उन्होंने हमें किया, पाला पोसा, और फिर हमें इस पोजीशन तक पहुंचाया. और भी दूसरा मैं देखती हूँ कि अगर सोनीपत से हम देखते हैं कि अगर सर्विसेज में कितने लोग जाते हैं तो वो अच्छी परसेंटेज रहती है सोनीपत से, और हार्ड वर्किंग पीपल हैं, फोकस्ड हैं, डिटरमिन्ड हैं. जैसे अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर में तो इतना नहीं है जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ ज़्यादा है, तो सोनीपत के लोग. एक हमने सुना है कि बहुत इंटेलिजेंट है वहाँ के लोग, हाजिर जवाब हैं. Is it there? We can say अगर हम We are asking this question from the societal point of view. Societal Yeah. point of view. It's not from your family. It's we are talking about in general. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. I'm sure because जो हरियाणा में जो लैंग्वेज सोनीपत और रोहतक में बोली जाती है वो डेफिनेटली खड़ी बोली है, और उस लैंग्वेज में मैम जैसे अगर कोई इसको अगर हम लें कि जैसे जोकिंगली भी लें कि अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो वो उसका मजाक में दूसरा ऐसा है कि मजाक में ही जवाब देते हैं. So it shows they have a higher IQ. Don't you feel? They have intelligence. इस बेस पे इंटेलिजेंस तो कैसे कह सकते हैं, अदरवाइज इंटेलिजेंट है ये मैं कह सकती हूँ. बाकी हायर आईक्यू तो मैम सब जगह ऐसा नहीं है कि एनी प्लेस आईक्यू कैन डेवलप, बिकॉज डिपेंड करता है सराउंडिंग्स कैसी है. Okay. Okay.
Neelam, you know about the Sigmund Freud says one personality, is a composition of 3 components. Do you know about those components? No, ma'am, I'm not great Sigmund Freud. So I tell you, the one is id, the other is ego, the third one is superego. Yes, ma'am. So which one is present in the human personality by birth? I'm sorry to recall what time. It's no. Okay. What do you think of reservation for women in parliament? Yes, मैम. रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए मैम बिल्स आए हैं और ये कई सालों से रादर डेकेड से ये एफर्ट्स चल रहे हैं कि रिजर्वेशन वुमेन को मिले. तो इसके मैम दोनों ही साइड्स हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं. पॉजिटिव में हम ले सकते हैं कि जैसे हमें PRS पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में जैसे वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिली है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में भी है तो भी उन्हें मिली है. उसके रिजल्ट अच्छे रहे हैं कि वुमेन सरपंच हैं, तो वुमेन अपनी ही वुमेन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकती हैं, तो वो अच्छा रहा है. वुमेन को ग्रेटर से मिलेगा कि अगर सिर्फ मैन ही करेंगे तो शायद वो प्रॉब्लम्स जो वुमेन फेस करती है बाहर या घर में वो चीज़ वो रिप्रेजेंट कर पाए, उनके लिए बिल्स बन सके या एक्ट्स बन सके. तो उसके लिए रहेगा कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा. बट नेगेटिव एस्पेक्ट इसका होगा कि हम जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं या उनके लिए वुमेन को सीट देना, तो उन्हें लगेगा कि या तो हम इनएफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे हैं या वुमेन खुद ही आगे आए जो नहीं आ पा रही हैं किसी भी रीज़न से. तो अगर हम उनको पार्लियामेंट में सपोर्ट भी करते हैं तो उससे बेटर है कि हम उनको पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें रिप्रेजेंट करें, तो वो खुद ही आगे आए. Okay. Don't you feel working women, they are neglecting their families, their children, so they should focus more on that? No, ma'am, definitely not. Why? Because women, I know, like maybe it may be like मैं अपनी praise खुद कर रही हूँ, but women never neglect their families and their responsibilities, except in few cases. It depends on the management. Yes, basically. time management and. Okay. Neelam, we are spending so much on ISRO missions Yes, ma'am. in India. So, and while we have so much poverty in India, Yes, ma'am. so don't you feel we should not spend so much on these missions? No, ma'am, I don't think so because ISRO. What are the reasons? Yeah. Sorry, ma'am, I interrupted you. Sorry. Yeah. Carry on. मैम आई डोंट थिंक सो बिकॉज इसरो में ने जो भी मिशंस हुए हैं साइंटिफिक हुए हैं या फिर डिफेंस के में कंट्रीब्यूशन रही है, सैटेलाइट की कंट्रीब्यूशन रही है, तो मैम वो एक ग्रेटर पार्ट पे वो कंट्री को ही सर्व करने के लिए हुआ है. चाहे हम इसके लिए IRNS देख लें या फिर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ देख लें कि जो हमने स्पेस रिसर्च से या डेवलप की है स्पेस एडवांसमेंट से, वो कहीं ना कहीं जाके कंट्री के किसी ना किसी तरह वो कंट्री के जो पोरेस्ट पीपल है उनके लिए है ज़रूरी. कि अगर हम देखें कि हम पॉवर्टी के लिए नो डाउट वेलफेयर स्टेट है हमारी, तो हम उनकी स्कीम्स उस पर तो गवर्नमेंट खर्च करती है, बट अगर इसरो की कंट्रीब्यूशन में देखें तो साइंटिफिक एडवांसमेंट अगर पॉजिटिव जा रही है तो पीपल के लिए बेनिफिशियल है. नहीं, अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक कल्चरल एडवांसमेंट्स एंड ऑल, कुछ आप फाइनेंशियल एंगल के ऊपर, कमर्शियल एंगल के ऊपर कुछ हमें बताना चाहेंगे? यस सर, जैसे अंतरिक्ष है हमारी, अगर हम इसमें प्राइवेट PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करें तो नहीं, ये प्रमोट हो रहा है इस समय कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है लेकिन कम लेसर लेवल पे. कोई कंपनीज, 1-2 कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज कोई हैं जो इसरो के साथ इस समय पार्टिसिपेट कर रही हैं?
सर जैसे मैंने बताया अंतरिक्ष है और फॉरेन में जैसे है स्पेस एक्स है, तो इंडिया में तो एक अंतरिक्ष है। सिर्फ अंतरिक्ष है? सर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में से भी आ रहे हैं बट कोई स्टार्टअप्स भी होंगे शायद? यस सर डेफिनेटली। कौन है? स्टार्टअप सर बेंगलोर से हैं, हैदराबाद से हैं, बट आई डोंट नो द नेम। और कमर्शियली व्हाट इज इंडियाज विजन कि भाई by another about 10 years where India wants to be there at the commercial level? क्योंकि इंडिया का इस समय सिर्फ 2% शेयर है वर्ल्ड स्पेस लॉन्चेस में। वेयर इंडिया वांट्स टू सी इटसेल्फ आफ्टर 10 years? कुछ मिशन ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं इस समय? सर उसमें से हमारा जो नेविगेशन सैटेलाइट्स है वो सिस्टम हमारा जल्दी आ जाएगा, जिसमें हमें जीपीएस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। दूसरा सर मिशन शक्ति रहा, जिसमें सैटेलाइट्स को हमने डिस्ट्रॉय किया, कैपेबिलिटी डेवलप की। एंड मार्स के लिए सर मिशन है, शुक्रयान है, जो अभी रिसेंटली अभी हो नहीं पाया कोरोना की वजह से, 2023 में जो होना था। एंड सर हमने आदित्य मिशन किया है, कोरोना की स्टडी की है, सन की कोरोना की स्टडी के लिए। और चंद्रयान 2 है, जिसमें सर हम मैन लैंडिंग कैपेबिलिटी वो डेवलप कर पाएंगे और ह्यूमंस को स्पेस। No problem. I just wanted to know, sir. ओके नीलम, सपोज आप कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम हैं Yes, और बिकॉज यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, यू वांट टू सर्व योर कंट्री एंड यू फील बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वहाँ पर, तो हाउ वुड यू हैंडल इट? yes मैम, वेरी मेरे कंटेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो मैम हम कोई भी फील्ड लें, कहीं भी लें, चाहे हेल्थ में भी मैंने जैसे देखा वहाँ भी रहती थी, और जैसे मैं अभी करंट डिपार्टमेंट में देखती हूँ तो मैम यहाँ भी रहती हैं। अगर ज़्यादा है उस केस में डिपेंड करता है कि मुझे तो अपना काम ही करना है। ज़्यादा से अगर मैं एक्सट्रीम में जाती हूँ या मैं सोच लेती हूँ तो मैं तो एज़ पर लॉ या फिर एज़ पर जो मेरे जो मुझे लॉ अलाउ करता है या एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैं बेटरमेंट के लिए कर सकती हूँ वही करूँगी। जो दूसरे डिपार्टमेंट से वहाँ इनडायरेक्ट है इंटरफेरेंस, यहाँ डायरेक्ट होगी। यस मैम। तो वही माय क्वेश्चन वाज कि कैसे हैंडल करूँ? मैम आई डू माई वर्क ओनली, और बिकॉज मैम इस केस में अगर प्रेशर भी लेते हैं तो मैम यही होता है कि अगर हम एक्सट्रीम भी सोचे तो ट्रांसफर ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। और भी बहुत कुछ हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। मैम इट डिपेंड्स कि मैं कैसे टैकल करूँगी कंडीशंस को। ओके नीलम, एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ एंड यू नो यू फेस्ड दैट एंड उससे कैसे फिर ओवरकम किया आपने? आई शुड टेल अबाउट डिफिकल्ट सिचुएशन या मैंने कैसे टैकल किया, दोनों? या हाँ, आप यू टेल अबाउट योरसेल्फ। यस मैम, मेरा 2017 में यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम था और मैं डिपार्टमेंट से बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लूँ, तो मेरी अर्न लीव भी सैंक्शन नहीं हो रही थी और मुझे कोई लीव नहीं मिल रही थी कि मैं तैयारी करूँ, और माइंड में प्रेशर था कि मेरा लास्ट चांस है, बिकॉज मैंने बहुत लेट तैयारी शुरू की, तो मेरे पास 2 ही चांसेस थे यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए, और मेरा वो लास्ट था। तो मेरे ऊपर प्रेशर था काफ़ी, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स लेनी पड़ी, और उसके लिए मैंने यही सोचा कि आइदर दिस वे और दैट वे, कि मैं अगर करना है तो यही करना है। और उसमें मेरी फैमिली का भी सपोर्ट रहा, बट वो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, 2 years वेरी डिफिकल्ट। Okay. The one is IQ, the other factor is EQ. What's the difference between that? IQ and EQ. One IQ is intelligent quotient, and other one EQ is emotional quotient. Yeah. So you tell, this is, I'm asking what's the difference between them? Yes. इंटेलिजेंट क्वेश्चन मैम, IQ हम कह सकते हैं कि जैसे कि
जिसे बच्चों में देखते हैं, स्टूडेंट्स में देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, उसको हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं कि वो कितनी जल्दी ग्रैस्प करते हैं, कितनी जल्दी सीखते हैं कोई चीज़, और प्रॉब्लम कितनी जल्दी रीजनिंग करते हैं, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इमोशनल क्वेश्चन एज मैम जैसे उसमें इंटेलिजेंस ऐसे है कि मैं किसी के इमोशंस देख के उनकी बातों से इम्प्रेस ना हूँ, रादर मैं अपनी खुद की जजमेंट रखूँ कि क्या सिचुएशन है और मैं उसको इंटरप्रेट करूँ। Kind of emotional stability. यस Okay. Your hobby is cooking? मैम, यस मैम। So what do you cook? मैम घर का खाना बनाती हूँ। Okay. यस मैम। You try other dishes also? यस Okay. Okay. It's okay, Neelam. Yes. सो मच। Sir, जी please. थैंक यू सीता जी। चेयरमैन साहब ने आपसे जनरल नॉलेज पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और उसमें अभी इसरो का है, पर उसको आई विल कम टू दैट लेटर। नीलम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड नीलम? सर नीलम का मतलब ब्लू स्टोन है जो फिंगर्स में पहनते हैं, और ये स्टोन कुछ लोग जो मानते हैं कि लकी होता है और कुछ लोग मानते हैं कि सूट नहीं करता है, तो ब्लू किस कौन से और कलर्स के होते हैं? क्या क्या नाम है उनके? कुछ आइडिया? ये सर हिंदी में जैसे है कि गोमेद होता है, रूबी होती है, और ग्रीन कलर का होता है मूंगा। ओके, आप यू वर गुप्ता बिफोर मैरिज? नो सर, आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज यू आर गुप्ता। अच्छा, मेहरा यू वर बिफोर मैरिज। Yes. ओके। सो ये जो आपने राय स्कूल का होशियार सिंह वाला ये बताया, कौन सा आइलैंड है जो जिसको नाम किया उन्होंने होशियार सिंह के नाम से, अभी जो कल परसों प्राइम मिनिस्टर ने किया? विच आइलैंड इज दैट एग्जैक्टली? उनके नाम से, जो होशियार सिंह जी के नाम से हुआ है। आप होशियार सिंह जी के नाम से हुआ है ना? आपका सोनीपत का जो यस एग्जैक्ट नेम नहीं मालूम? नो सर। हैवलॉक है, कोई और है? सर मैंने नहीं पढ़ा। ओके, बट आपको अपना तो सोनीपत का पता होना चाहिए, क्योंकि आपका हो गया ना, अब तो आपका हो गया, तो सोनीपत का हो गया आइलैंड। आपके मैट्रिकुलेशन में सब्जेक्ट्स क्या थे? So matriculation में subjects is Hindi, English, Science, Mathematics, and sir Sanskrit with us और drawing थी। संस्कृत और ड्राइंग, Yes, सोशल साइंस social वो भी studies। रहेगा। Yes. अच्छा, तो ये संस्कृत जो आपने ली वो कोई बताएंगे संस्कृत में क्या था? उसमें क्या क्या आता है संस्कृत में? सर संस्कृत में जो हम जो सेंटेंसेस हैं या वर्ड्स, ना मतलब सिलेबस क्या था? सर देयर वाज अ बुक ओनली यस और सम प्ले और सम सर बुक क्या उसमें चैप्टर्स थे? यस सर। ओके, सर ग्रामर थी और ग्रामर था अलग। यस अच्छा, संस्कृत डू यू थिंक इट इज अ लैंग्वेज? यस सर। लैंग्वेज का बेसिक क्या है? सर लैंग्वेज वे इट इज ए मींस टू कम्युनिकेट विद द हाँ। अदर पीपल। यस हाँ, बट व्हाट इज बेसिक टू द लैंग्वेज? सो इट इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज जो मैं कहूँ ना ना, कोई भी लैंग्वेज है उसका बेसिक क्या है? कि इजीली हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हाँ ठीक है। सो डू वी कम्युनिकेट इन संस्कृत? सर बहुत कम नंबर में संस्कृत यूज हो रही है, बट उससे डिराइव लैंग्वेज बहुत सारी है सर। वो हाँ कहीं ना कहीं ठीक है, words आ जाते वोकैबुलरी वाइज इट्स ऑलराइट। हैं। और दूसरा कोई एक जगह है डू यू नो इन इंडिया जहाँ सब लोग इन संस्कृत में बात करते हैं? So there is a village. वहाँ पर डेंटल कॉलेज भी है बाई चांस? Yes, sir. There is a village in Andhra, if I'm not wrong. कर्नाटका आई थिंक। ये जो चेन है पूरी उनकी एजुकेशन का, पूरा एक वो विलेज है। Yes, sir. उन्होंने प्रमोट किया है। अच्छा काफी- चलो बाद में बताएंगे। बहुत अच्छा है। ओके चलिए, संस्कृत के कुछ बताएंगे, कुछ राइटर्स अपने जो इंडियन ही है वो तो सभी। एंशिएंट राइटर्स कोई एक नाम?
सर संस्कृत में पर्टिकुलर तो नहीं, मैं हिंदी के राइटर्स हैं बहुत सारे तो नहीं, संस्कृत इसलिए पूछ रहा हूँ कि संस्कृत एक स्पेसिफिक आपका चॉइस था ना, इसलिए तो आपका पैशन रहा होगा या बाद में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। मैंने कॉलेज तक पढ़ी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। यस सर पर्टिकुलर संस्कृत में जो लिख पाए उस पे नहीं मैंने देखा। कालिदास का नाम सुना है आपने? कोई एक कालिदास का कुछ बता सकते हैं? वैसे तो 3-4 हैं लेकिन मशहूर जो है बहुत। सर विज्ञान शाकुंतला। हाँ एक है, ठीक है। चलिए, अब ये आपका गीता विद्या मंदिर का कोई कुरुक्षेत्र से भी कनेक्शन है इसका, उसी की ब्रांच है? यस सर। जो गीता विद्या मंदिर कुरुक्षेत्र का है उन्हीं का है। तो गीता पढ़ाते हैं उसमें? सर उस टाइम तो नहीं पढ़ाते थे। अच्छा, आपने वैसे अदरवाइज गीता के बारे में कुछ पता है? यस सर। अच्छा, क्या है गीता, क्या था? सर गीता मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि मैं अपने लिए लाइफ में देखती हूँ तो इसमें है कि कर्म ही पूजा है जो इसका बेसिक जो ये हमें बताती है। बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो या उसका सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन मुझे लगता है गीता में है। ये संस्कृत से भी बाई चांस कनेक्ट हो रहा है, बट क्या गीता किसने लिखी गीता? सर लिखी नहीं पता। चलिए, अब हम डेंटल पे आते हैं। आपका जो नेक्स्ट बायोडाटा का एस्पेक्ट है कि डेंटल सर्जरी में आपने किया बीआरएस से। बीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? सर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव। अच्छा अच्छा। और ये डेंटल से आप इधर स्विच ओवर किया, ब्रिगेडियर साहब ने पूछा भी आपसे इस बारे में। आपने कहा कि ये आपको लग रहा है कि यू हैव अ बेटर स्कोप ऑफ डूइंग पब्लिक वर्क एंड ऑल दैट। लेकिन 2 चीज़ें डेंटल के बारे में कि आपने अगर किसी को बताना हो स्कूलों में, मान लो आप स्कूलों में स्कीम चलानी हो, है आपकी पहले से ही स्कूल की स्कीम है एक, तो आप क्या बताएंगे बच्चों को कि क्या दांतों की देखभाल कैसे करें विदाउट कॉस्ट, खर्चा ना हो जिसमें? जी सर। कैसे? सर हम एज ए मैं डेंटल ऑफिसर्स भी स्कूल्स में जाती थी हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स के लिए, और स्कूल में बच्चों को उनकी असेंबली के टाइम तो मैं लेक्चर्स भी उनको देती थी अबाउट द ओरल हाइजीन एंड ओरल हैबिट्स, ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस, बिकॉज माउथ इज द मिरर ऑफ होल बॉडी। अगर वो हेल्दी होगा तो बॉडी, अगर कोई प्रॉब्लम बॉडी में है तो वो माउथ में रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। तो अगर हम अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाएं, जैसे आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड है वो नहीं लें, और ब्रश हम बताते हैं कि उनको सवेरे शाम ब्रश करें, ओरल हैबिट्स हेल्दी डेवलप करें और ऐसी चीज़ें ना खाएं। बहुत सारे बच्चे ब्रश भी अफोर्ड नहीं कर सकते। yes. या ब्रश का आपको क्या लगता है कि जरूरी है ब्रश, मतलब ब्रश एज सच? सर जैसे दिस इज अ न्यू टेक्निक ना, मैकेनिकल कोई नई चीज पैदा की गई है। ब्रश इज नॉट समथिंग नेचुरल। yes. तो डू वी रिक्वायर ब्रश? सर क्योंकि इंटरडेंटल एरियाज में क्लीनिंग, जैसे पहले दातुन होती थी, कीकर की दातुन या नीम की दातुन है, उनके अपने बेनिफिट्स हैं आयुर्वेदा में। बट अगर ब्रश, जैसे कि अब हमारी जो फूड है, हमारा फूड इतना ज़्यादा सैलेड नहीं होती उसमें कि हमारे फूड की सेल्फ क्लिनजिंग हो सके। जैसे पहले गन्ना ज़्यादा खाते थे तो अपने आप ही क्लिनजिंग पर्पस हो जाता था, पर आजकल जो रिफाइंड फूड आ गया है तो उसकी क्लीनिंग के लिए स्टिकी फूड ज़्यादा है, बच्चे चॉकलेट टॉफी खाते हैं, तो उस केस में सर ब्रश इज आई थिंक। ब्रश के अपने भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप जो आपको एज डॉक्टर पता होंगे। जी सर। वो बताएंगे? सर ब्रश की टेक्निक है, अगर हम प्रॉपर टेक्निक नहीं फॉलो करते तो फिर सर उससे एब्रेजन हो जाता है, दांत घिस जाते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टली करते हैं तो, और प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते। दूसरा है कि अगर ब्रश एक ही है उसको हम 3 मंथ्स में चेंज नहीं करते तो वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं करती, फिर उसकी यू कैन एक्सप्लेन। 2-3 पॉइंट और हैं, वो कर लेंगे। लेकिन ये कहते हैं देयर इज नो विजडम इन द विजडम टूथ। पहले तो इसे विजडम टूथ क्यों बोलते हैं, और दूसरा क्यों बोलते हैं कि देयर इज नो विजडम इन द विजडम टूथ? सर विजडम टूथ इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये उस एज में आता है, 18 to 20 ईयर्स में आता है, जब हम कंसीडर करते हैं कि एडोलेसेंस के बाद पर्सन में विजडम आ रही है, तो इसका नाम है।
सर जैसे ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुआ तो 3 मोलर्स होते थे हमारे, जॉ साइज बड़ा होता था, तो फिर ये 3 मोलर्स हमारे पूरे हेल्पफुल थे। आजकल क्योंकि हमारा फूड रिफाइंड हो गया है तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉपर इरप्ट नहीं हो पाता है विजडम टूथ, तो इसलिए अब बोन में ही रहता है। जॉ साइज छोटा होने की वजह से इम्पैक्शन बोलते हैं, जैसे इम्पैक्शन होती है तो अब हम ये कहते हैं कि देयर इज नो विजडम टूथ, बिकॉज पर्सन तो मैच्योर हो जाता है तो उसकी विजडम टूथ नहीं आती, जैसे मेरी भी नहीं है। जीएसटी 28% तक है, इज इट वाइज इतना ज्यादा जीएसटी रखना? यस सर, गवर्नमेंट ने 5 टैक्स स्लैब्स लेके आई हैं गवर्नमेंट, 0%, 5%, 12% एंड 12, 18 एंड 28%। 28% इज ऑन द वेरियस सिन गुड्स जिनको गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, जैसे एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, टोबैको है, तो उनके थ्रू सर इसमें हमारा पॉजिटिव भी है कि हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो जाता है जो जीएसटी कॉम्पनसेशन से स्टेट्स को दिया जाता है। इसके प्रीडिसेसर्स क्या रहे हैं? जब वैट आया था तो बोल रहे थे कि वैट से सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तो बहुत समय लगा लॉन्च करने में। उससे पहले कुछ और होता था, क्या होता था? कैन यू टेल सम हिस्ट्री ऑफ द टैक्सेशन? यस सर, उससे पहले सेंट्रल एक ही सेल टैक्स होता था वैट से पहले, तो सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स आया, उसके बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। कितने तरह का है जीएसटी? सर जीएसटी 3 तरह का है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब आपका लास्ट एक इसरो वाला सवाल कि इसरो का, मैम जो सर ने पूछा कि मैम ने बल्कि कहा कि इसका पॉवर्टी, वी आर सो पुअर एंड स्टिल वी आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑन दिस थिंग। एक तो कोई प्राइवेट स्टार्टअप आया अभी सैटेलाइट लॉन्च किया, डू यू नो द नेम? उन्होंने अभी सैटेलाइट, प्राइवेट सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया लॉन्च किया। और दूसरा ये कि इसका पुअर पीपल को क्या फायदा होता है, ये जो सैटेलाइट्स हम छोड़ते हैं, क्या रेलिवेंस है? व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द यूज और एडवांटेज ऑफ? सर नेम तो आई कुडंट रिकॉल, वेरी सॉरी। एंड सर इसका पुअर्स के लिए बेनिफिट जैसे है, हम एग्रीकल्चर में हैं, एग्रीकल्चर लैंड की इंस्पेक्शन है उसके लिए कर सकते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस एरिया की पूरी डेवलपमेंट हो सकती है, तो लोगों को जॉब क्रिएट होगी, जॉब जनरेशन होगी। और अगर हम वाटर लेवल है सर, वो सैटेलाइट से हम देख सकते हैं कि फॉल कितना हो रहा है। एंड सर उसके लिए और सैटेलाइट से नो डाउट डिफेंस में तो है ही, कॉमन पीपल के लिए सर एरिया, सर अगर हम लैंड से रिलेटेड है। ओके, सोशियोलॉजी में आप एक तो बताएं कि कोई सोशल थिंकर्स के 2-4 नाम बताएंगे? जी सर, सर अगर हम कहें जो बाहर के थिंकर्स, उसमें कार्ल मार्क्स है, वेबर है, टैलकेट पार्सन है। वेबर की कोई थ्योरी बताएंगे? यस सर, सर वेबर ही वाज बेसिकली इंटरप्रिटेटिव। पूरा नाम क्या था? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, यस, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजिस्ट थे वो, और उन्होंने सर लाइक मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया अपनी थियरीज में, कि मैन कैसे इंटरप्रेट करता है डिफरेंट थिंग्स को, और इट वाज ए माइक्रो बेसिकली पॉजिटिविस्ट जिसको हम कहेंगे सोशियोलॉजी। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर उनकी जो फेमस हुई है थ्योरी? ब्यूरोक्रेसी का नाम सुना है? यस, वेबर की ब्यूरोक्रेसी आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। देन फंक्शनल थ्योरी किसने ली थी सोशियोलॉजी में? फंक्शनल थ्योरिस्ट जो थे सर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में एम.एन. श्रीनिवास रही है, इंटरनेशनल लेवल पे। सर फंक्शनलिस्ट सर टैलकेट पार्सन, उन्होंने बाद में इलैबोरेट किया ओरिजिनल थ्योरी। हु सेड सोसाइटी इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी?
सर डरखाई. हाँ दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम. ओके. एंड 4-5 एक नाम आपने एमएल श्रीनिवास का लिया, बाकी भी बता दें 2-4 इंडियंस सोशियोलॉजिस्ट, सोशल थिंकर्स. सर GS घुरे हैं, सर देसाई जी हैं, IB देसाई, AR देसाई हैं, और दीपांकर गुप्ता हैं सर. ये जो मैम ने सवाल पूछा पर्सनैलिटी पे फ्राइड का, ईड ईगो सुपर ईगो, इसकी एक नई थ्योरी आई है, कोई जो सिंपल टर्म्स में है. यस सर. बताएंगे? Yes, sir. So it's I, myself, and me, given by some meat. It is self-presentation. GS मीड ने सर थ्योरी दी है उसमें कि बेबी कैसे डेवलप करता है उसके डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर मैं और मुझसे ये सारी चीजें मी एंड माई सेल्फ कैसे डेवलप. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का नाम सुना आप? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सोशियोलॉजी में नहीं, ये दोनों सोशियोलॉजी में भी आएगा और इसमें साइकोलॉजी में भी आएगा. चलिए बहुत अच्छा, ठीक है. वो प्रॉब्लम सभी डेंटल इंजीनियर और डॉक्टर इंजीनियर्स के साथ ह्यूमैनिटीज वाली वो भी विल डिस्कस, अभी हम आपस में कर ले. ठीक है, थैंक यू. So I think okay, you just wait for 5 minutes, we'll call you back. हाँ, एक बार हम आपस में बात करेंगे फिर. थैंक यू. नीलम जी, सबसे पहले तो आप बताइए, आपकी खुद सेल्फ असेसमेंट करके हमें बताइए कि क्या कैसा रहा, कहाँ आपको कमियां लगी या कहाँ आपको ठीक ठाक लगा, अपनी असेसमेंट खुद करके हमें बताइए. यस सर. सर मेरी जो वीकनेस रही वो करंट अफेयर्स में रही, वो मैं एड्रेस कर रही हूँ, काफी ज्यादा रही, बिकॉज मुझे वो शायद आप करंट जॉब में एंगेज हो तो इतना टाइम नहीं शायद निकाल पा रही होंगी. अभी थोड़ा सा जो टाइम मिलता है बिफोर योर फाइनल इंटरव्यू, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए एंड बी अपडेटेड एज फार एज. बाद में दे देंगे सोल्यूशन, पहले उनकी असेसमेंट से. सर जैसे मैं अभी नई ट्रांसफर होके आई तो फिर मुझे था कि मैं काम भी ज्यादा है तो मुझे लगा मैं 100% दूँ, तो मैंने नेग्लेक्ट किया करंट अफेयर्स. वो मुझे कहीं ना कहीं ना करे. तो दूसरा सर ने जैसे सोशियोलॉजी में पूछा, मेरी रिवीजन पूरी नहीं हो पाई, हालांकि मुझे आता था बट वो बैक ऑफ द माइंड था, बट मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सोशियोलॉजी. बाकी मैम थोड़ा बाकी आप बताएंगे कि लैंग्वेज में कैसा रहा है. नहीं, लैंग्वेज तो ठीक है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ओके, बट मे बी आप हिंदी इंग्लिश बीच में स्विचिंग ओवर फ्रॉम वन टू दी अदर, उसमें बड़ा फ्रीक्वेंटली करने के बजाय थोड़ा सा कंटिन्यूसली इफ यू स्टिक टू वन, ठीक है, टू एलैबोरेट सर्टेन थिंग्स. You can emphasize certain things in other language also, but very frequent and very abrupt भी नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाता है. इस पे मैं ऐड कर देता हूँ कि आप हिंदी रखो, बिकॉज आप इंग्लिश से हिंदी में स्विच ओवर करते हो तो थोड़ा सा वीकनेस लगती है, और बीच बीच में आप एक आध सेंटेंस इंग्लिश का जो आपको लगता है कि इंग्लिश में यू कैन एक्सप्रेस बेटर, यू कैन, बट कंप्लीट सेंटेंस, नॉट हाफ हिंदी और हाफ इंग्लिश. ऐसे स्विचिंग ओवर एब्रप्टली, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही रहना, मतलब कम्युनिकेशन शुड नॉट बी ए बैरियर. You can tell them कि I'm comfortable in Hindi. Very easily you can tell them. कोई इशू नहीं है. और थोड़ा सा एनर्जी लेवल थोड़ा चेयरफुल. आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, 16 साल का बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो बी लिटिल एनर्जेटिक. Don't feel nervous. Be confident. So what? You have seen enough of this kind of environment. So this is nothing new for you. तो इनफैक्ट आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं ना,
वैसे ही परफॉर्मेंस भी नॉर्मली कॉन्फिडेंट ही होती है। अगर आप लो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, मान लो आप थोड़े डरे हुए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फॉल्टर कर जाते हैं, फिर वो स्लिप करता जाता है, आप डरते जाते हैं और डरते जाते हैं, तो इसलिए पूरा अपना गलती होएगी, नहीं आएंगे सवाल, कोई बात नहीं, सब थोड़ी आता है। जी सर। आप जब एंटर हुए तो यू वर हेजिटेंट, आप एक बार रुक गए, ठीक है, आप एंटर कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली एंटर करो। एंड इतने आप नर्वस हो गए कि आपने गुड आफ्टरनून आके बैठ कर बोला, आते ही जब आप आ रहे हो तो आपको विश करना चाहिए। एंड देन यू टेक योर सीट एंड उसके बाद कंफर्टेबल हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, आंसर तो हमारे रॉन्ग और राइट होते हैं, सभी तो सब नहीं जानते, जी है ना, तो लेकिन द कॉन्फिडेंस यू शो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो वही है, ये पर्सनालिटी टेस्ट ही है ये, और कुछ भी नहीं है। जी घुसते ही एक बार पूरी जोश के साथ विश करना है, हाँ, और कॉन्फिडेंस के साथ ही रहना है। गलती का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग कोई भी इंटरव्यू में ना ये नहीं देखता कि इन्होंने सवालों के जवाब दिए या नहीं दिए। एक आप आई कांटेक्ट नहीं करते हो, झुकते हो, जो आंखें नीचे कर लेते हो, Maximum आंखें time डाल के नीचे। जवाब देना है, जो पूछ रहा है उसी को जवाब देना है, और सीधा जवाब देना है। ऐसे नहीं कि भी बोल रहे हैं तो कुछ, क्योंकि हिंदी में बोल रहे हो, आप कोई सोचना तो ट्रांसलेट तो करना है नहीं, तो आप सीधे बात करो, मतलब ऐसे जैसे बराबर, यू आर ऑलमोस्ट इक्वल। आप 13-15 ईयर सर्विस कर चुके हो, सो वी आर इक्वल्स। तो ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यू आर सबॉर्डिनेट, या आप कोई क्राइम करके आए हुए हो और आप कोई कोर्ट लगा नहीं, हो। eye कोई contact नई तो होना एनवायरनमेंट में आ गए हो आप, हाँ, आपको reflects पता नहीं है इसके होता है। क्या होता है, कैसे हाँ। होता है। ये तो आपका अपना ही इंस्टीट्यूट है वैसे भी, यस लेकिन वहां भी वो लोग भी अपने ही हैं। ऐसा नहीं है वो कोई आपको ऐसा, इंटरव्यू के बारे में ये बहुत गलत फहमी है कि ग्रिलिंग करनी होती है। कोई ग्रिलिंग नहीं करनी होती। इनफैक्ट कंफर्टेबल करते हैं हम लोग कि आप खुल के बोलो। आपको टेस्ट तभी कर पाएंगे जब आप बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ही नहीं तो बात ही कैसे होगी, पता कैसे चलेगा क्या है। यस तो बोलना होता है, उसमें ऑनेस्टी देखनी होती है, कम्युनिकेशन देखना होता है, नॉलेज का लेवल इन जनरल देखना होता है। जैसे मैम ने और सर ने दोनों जनरल क्वेश्चन पूछे हैं, मैम ने जो पूछे हैं वो, अब जैसे सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट तो आपका क्लियर बिल्कुल सही, सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ लगभग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हैं उस पर। तो आपका सब्जेक्ट है इसलिए। बाकी लेकिन और जितने भी है ना, देखो जो आपका बायोडाटा होता है वो आपके 80% क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर देता है। हम भी तो आपके बायोडाटा से ही देख रहे हैं, आप भी अपना बायोडाटा खुद देख सकते हैं। नीलम से आप सारे जफायर, जितने सफायर जो भी होते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है। सफायर, एमरेल्ड। आपने ग्रीन बोला, मूंगा, हाँ इट्स एमरेल्ड, पन्ना बोलते हैं हाँ, इसको। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद हैं। एक है नवरत्न, क्या कौन से रतन होते हैं? नवरत्न, वो भी रतन ही है ना, मतलब इसी में है। तो मतलब यू शुड बी क्लियर। यस एक लाइकली क्वेश्चन का एरिया है ये। वो तो आपको जानना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि तैयारी आपका कर- नाम ऐसा है ना, तो जेम्स पे तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। तैयारी करके, मतलब तैयारी का पार्ट है ये, जी सर कि आपको पता हो। वैसे ही कोई कहेगा कि आप नीलम हो, अच्छा नीलम का रंग कौन सा होता है, मुझे नहीं पता, आपको जरूर पता होना चाहिए। जी सर बट यू शुड ऑल्सो नो कि इसके अलावा और कौन से रंग होते हैं। ये पत्थर है असल में तो। जी सर एनीवे, आप सब्जेक्ट्स के बारे में, गीता जैसे, गीता आपको पता होना चाहिए, ये श्रुति है कि बोला गया था, भाषण दिया था कृष्ण ने इसको, अर्जुन को, टाइम पे है। यस और वो सुन के फिर किसी ने, जो भी वो सुना था, विदुर ने सुना था या किसी और, इसने नारद ने सुना था, किसी ने वो याद किया हुआ था, और वो यूं का यूं फिर उसको बाद में लिखा गया। किसने लिखा ये भी पता होना चाहिए। सर मैं आई आपने कृष्ण और अर्जुन वाला भी नहीं बताया हाँ। कॉन्सेप्ट, वो तो बताना चाहिए। चलो ये तो सबको पता है कि कृष्ण ने उतना अर्जुन पार्ट को, तो बता सकते उतना तो बता सकते थे कि कृष्ण और ने अर्जुन आप को ज्ञान गीता- दिया था। गीता स्कूल में पढ़े हैं, अब जो नहीं पढ़ा है उसको भी पता होना चाहिए क्या बात करते हैं। कुरुक्षेत्र से है उसको पता होना चाहिए, जो हिंदू है उसे पता होना चाहिए, जो इंडिया में है उसे पता होना चाहिए। आप तो सब कुछ है,
तो पता होना चाहिए, ये तैयारी करके जाए। और डेंटल के सवाल आपके जवाब ठीक थे, हालांकि आप फील्ड छोड़ रहे हो, वो छोड़ चुके हो, लेकिन डेंटल का आपका फील्ड बेटर था। कुकिंग का आपने हॉबी लिखा है, लेकिन मैम ने जो बात कही ना कि आप क्या जस्टिस कर पाते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स में भी पता चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वर्किंग लेडीज के साथ, अगर करंट अफेयर्स करते हैं तो कुकिंग खत्म हो जाती है। कुकिंग करते हैं, आपने खुद ही कहा, कुकिंग करते हैं तो करंट अफेयर्स निगलेक्ट होता है। इट्स ए प्रॉब्लम, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि वर्किंग वुमेन के साथ ये आपको यू शुड बी वेरी क्लियर कि यस ये प्रॉब्लम है, और ये है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है ये प्रॉब्लम। यस, क्योंकि वुमेन हैज टू मैनेज हाउस, हैज टू मैनेज yes in each and every condition, whether you are working or you are not working. In fact, I will say it is a better choice कि वही करे, वो घर का काम करे। क्यों? क्योंकि दो जगह करके उनको क्या मिल रहा है? She is being doubly exploited. सर फिर बच्चों का फ्यूचर भी देखना होता है। नहीं वैसे बात कर रहा हूँ, वो तो वैसे बात कर रहे हैं, है। क्योंकि अगर वो बाहर भी कर रही है तो वही रेस्टलेस होती है। हाँ, नुकसान तो उसे हो रहा है। यू आर नॉट रियलाइजिंग दिस थिंग। वो मैम यही कहलवाना चाहते थे आपसे कि जस्टिफिकेशन नहीं हो पाती दोनों तरफ। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये अलग बात है आप उनको पसंद कर रहे हो, हालांकि आपने वैसे लिख दिया, आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन उस पे आपको थोड़ी तैयारी करना चाहिए। हाँ। क्योंकि कुकिंग में आपसे हो सकता है वो कोई डिश भी पूछे। Yes. जब हम अपनी हॉबी लिख रहे हैं, मैं पूछना चाहती थी बट आई वांटेड टू जस्ट कंप्लीट इट हाँ, एंड यू नो टाइम जा रहा था, तो लेकिन फिर मैंने ज्यादा उस पे नहीं किया। आप कुकिंग अगर हॉबी लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि घर का खाना उसमें बना लेते हैं, एक विलेज में जो लेडी है वो भी बनाती है, तो आप स्पेशल ऐसा क्या बनाते हैं? मैं बच्चों के लिए चाइनीज भी बना लेती हूँ, इटालियन बना। तो आप उसमें बोलते चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, एवरीथिंग आई तो सारी लेडीज को बनाना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। आप लेकिन कोई कहे कि कुकिंग उनकी लाइकिंग है, आई विल से नो वर्किंग वुमन लाइक्स कुकिंग। माय वाइफ इज आल्सो वर्किंग। सो यूपीएससी से पहले मैंने बहुत चीजें बनाई। नहीं होती भी है लाइकिंग, लेकिन फिर उसमें स्पेसिफिक बताओ आप कि मैं ये कर लेती हूँ, मैं सब कॉन्टिनेंटल बना लेती हूँ, मैं चाइनीज, सब बताओ उसमें आप। नीलम, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। जो भी बोलो ना, एक तो ऑनेस्टली और एक रियलिस्टिक बोलना है। हमने कोई आइडियलिस्टिक पिक्चर नहीं क्रिएट करनी कि मुझे कुकिंग पसंद है। आप कहो कि आई हैव टू डू कुकिंग, आई डू इट विद लव। ये तो ठीक है, समझ आता है। You are able to manage your time properly. That is a good thing. But it's not that you like it, that's why you do it. You have to, there is no other option for you. सर एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता है। तो वही है ना कि whenever we have time, so I want to cook, but time ही नहीं है। सर हॉबी तो कोई डेवलप ही नहीं कर पाते। हाँ, तो मत लिखो फिर वहाँ पे, तब आपने लिख दिया तो think about the you know actual answer of that. Honestly, you think about it. Honestly, realistically, और वही आंसर दो जो अपील करता है रियलिस्टिक। क्योंकि हमें भी पता है कि भाई कोई लेडी वर्किंग वुमन को कुकिंग पसंद आ ही नहीं सकती। वो इतना थके हुए खाना बनाना किसको अच्छा लगता है? पैशन तो तभी फॉलो कर सकते हो जब आपके पास टाइम है। आप न्यूज़पेपर वाला इट्स रिकॉर्डिंग। न्यूज़पेपर का बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, खासतौर पर जब आप इंटरव्यू में आ रहे हैं। आप करंट अफेयर्स नहीं आती कोई बात, बट आप इंटरव्यू में आ रहे हो और आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। अभी देखो बारिश हो रही है ना, सर ने पूछा था कि कॉमन मैन को क्या फायदा है सैटेलाइट्स का। अब ये देखो, एक हफ्ता पहले प्रिडिक्शन हो गई थी, अगर ये सैटेलाइट नहीं होते तो मछुआरे समुद्र में फंसे होते, सबसे बड़ा तो आपका सब स्टक हो जाते। तो मौसम विभाग को सबसे ज्यादा फायदा तो ये है। और दूसरा रिमोट सेंसिंग है। देन ये जो जितना आपका यूज हो रहा है मोबाइल, ये सारा आपका तभी सस्ता होता है जब आप सैटेलाइट। कॉमन मैन तो आजकल मोबाइल भी यूज करता है। मैं फिर आंसर ही नहीं दे पाई, तो मुझे लगा कि करंट वो थोड़ा सा ब्रश अप कर लो उसको ना, करके जाना और कॉन्फिडेंटली जाना, बस आपका अच्छा होगा। आप कर लोगे, आप कर जाओगे ये इंटरव्यू, लेकिन आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली जाना बस।
You are already in this process. हाँ. You are already working there, so there is एंड यू आर nothing तो to worry. मैच्योर वन, इतने साल आपने जॉब कर लिया है तो हाँ, आपको तो तो बहुत हाँ, कॉन्फिडेंट होना चाहिए. सभी- आई वाज सभी इमेजिनिंग factor अबाउट आपके यू, favor आपका में। प्रोफाइल देखकर यही इमेजिन कर रही थी कि बहुत कॉन्फिडेंट होंगे. एंड यू हैव नथिंग टू लूज. Hmm. मतलब आपका एक तो बेचारा अनएम्प्लॉयड कोई आदमी ट्राई कर रहा है जॉब और 2 3 7 4 5 साल से बैठा हुआ कर रहा है. एक आप वो जो दोनों विन कर रहे हो. सर ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मेरा मतलब आप 2 वॉर विन कर रहे हो एक साथ ही. कर चुके हो, पहले डेंटल कोर्स किया, फिर ये किया, ITO अचीव किया. सो यू आर ऑलरेडी अ विनर. यू आर ऑलरेडी अ विनर. ठीक है. It's okay then, all the best All the from best. our side. Yeah. थैंक यू. Okay, okay, Neelam ji.